Good morning, student. Today we are going to start matrices. Suppose Mohan scored 20 runs in first match. Then we can write this information as square bracket 20 with the understanding that inside the bracket this 20 means run scored by Mohan. Now let us take different scenario. Suppose Mohan scored 20 runs in his first match of the tournament and 30 runs in second match of the tournament. Then we can represent it by square bracket 20 30 with the understanding that in first column run of first match are there, in second column run of second match are there. Now let us enhance it further. Suppose there are two players A and B. And in first match A scored 20 runs, in second match A scored 30 runs. B score in first match say 10 runs, in second say 40 runs. Then it can be represented by the square brackets 20, 30, 10, 40. These are runs of A, these are runs of B, with the understanding that in the first column run of first match are there, in second column run scored by A and B in second match are there. So we have a arrangement of numbers arranged in horizontal lines which we'll call rows and vertical lines which we will call column. So now let us properly define what is meant by a matrix. Matrix is defined as rectangular arrangement of numbers or you can say rectangular array of numbers. Matrix is defined as rectangular arrangement of numbers arranged in rows means horizontal lines and columns means vertical lines. तो मैट्रिक्स क्या है मैट्रिक्स क्या है मैट्रिक्स इज rectangular arrangement or array of numbers arranged in rows and columns horizontal and vertical lines enclosed between ये नंबर enclosed होने चाहिए between square bracket or sometime we may use round bracket and
denoted by capital letter A, B, C, etc. तो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल A इज इक्वल टू 2 1 3 4 2 1. This is a matrix. This is a matrix because it is a rectangular arrangement of numbers. यहाँ दो horizontal lines हैं और 1 2 3. So these are numbers arranged in two horizontal lines and three vertical lines, means 2 rows and 3 columns. So this is a matrix having 2 rows and 3 columns. Now what is element of a matrix? Element of a matrix. For example, take the above matrix A 2 1 3 4 2 1. This is an element. 2 is in the first row, first column. So I will call this as A11. A11 will mean element of first row and first column, it is 2. What is A12? Let us check. सबसे पहले हम रो नंबर लिखते हैं, फिर कॉलम नंबर. तो A12 मीन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इट इज़ 1. सिमिलरली A13 element of first row, third column, first horizontal line, third vertical line, this element is 3. So we'll write 3 for it. Now A21 element of second row, first column, it is 4. A22 it is 2, second row, second column, 2 Ri. Then A23 second row, पहले रो नंबर होता है, तो 2 3 मीन्स टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो दिस एलिमेंट इज 1. तो इन जनरल Aij is element of ith row and jth column. Now representation of matrix. Representation of matrix. Suppose we have to write a matrix having m rows and n columns. So first of all, now we'll define order of a matrix. If a matrix A has m rows and n columns, then its order is defined as m cross n. We read it as m cross n and denoted by O bracket A, order of A. So that is order of A is number of rows m cross number of columns. तो यहाँ हमेशा पहले रोज को लेंगे m क्रॉस n. तो अगर m रोज है n कॉलम है तो ऑर्डर इज m क्रॉस n. फॉर एग्जाम्पल इफ A इज दिस मैट्रिक्स 2 1 3 4 5 2, then it has how many horizontal line? 1 2 3. So 3 rows and 2 vertical lines, 2 columns. So order of A here is 3 horizontal lines, 3 rows and
2 vertical lines, 2 columns. Whereas if we have this matrix 1 2 3 4 5 6, it has 2 horizontal line and 3 vertical lines, so 2 cross 3. In both the case, number of elements will be 6. 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, and which is actually 2 into 3 6. If it is 3 cross 2, then 3 2s are 6. If it is 2 cross 3, then 2 into 3 is 6. So number of element is 6. So in general, number of element, Na means number of element, are Mn. Now let us discuss representation of matrix. Representation of a matrix. तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, इसमें एक ही एलिमेंट होगा, उसको हम A11 कह देंगे. 2 क्रॉस 2, इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, 2 वर्टिकल लाइन होंगी. A11 A12 A21 A22. कॉलम से क्या पता लगता है कि एक रो में कितने एलिमेंट होंगे. 2 कॉलम्स है ना, तो एक रो में 2 एलिमेंट होंगे, और ये हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस बताती है कितनी होंगी. सपोज आई हैव टू राइट 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो इट विल हैव 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस and 3 vertical lines. So means A11, तो अब इसको मिटा के फिर लिख सकते हैं तरीके से. A11 A12 A13, 3 कॉलम्स है ना, तो हर रो में 3 एलिमेंट होंगे, और रोज कितनी होंगी 2 क्रॉस 3 मीन्स 2 रोज. 2 1 2 2 2 3. In general, a M cross N matrix is represented by, उसमें M क्रॉस N है ना, तो कितनी लाइंस होंगी, M हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 अप टू M, और हर रो में N एलिमेंट होंगे. तो स्टार्ट करेंगे हम A11, फर्स्ट रो में 1 तो आएगा ही, A12 सेकंड कॉलम, A13 थर्ड कॉलम, और कहीं पे jth कॉलम आएगा A1j, और ये A1n तक चलेगा. फिर सेकंड रो में 2 फिक्स रहेगा, 2 1, सेकंड कॉलम 2 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3, सेकंड रो jth कॉलम A2j A2n. फिर लास्ट रो होगी हमारी mth रो, AM1 AM2 AM3 AMJ और AMN. बीच में कहीं ith रो दिखा सकते हो, AI1 AI2 सेकंड कॉलम, AI3 थर्ड कॉलम, then ith row and jth column aij and ain. तो यहाँ पे फर्स्ट रो होगी तो सब में 1 आएगा, तो A11 A12 A13, और कहीं jth कॉलम भी होगा, jth कॉलम, तो A1j, और n कॉलम्स तक होंगे तो A1n. फिर सेकंड रो A2 से स्टार्ट होके A21 से A2n तक. फिर लास्ट रो mth रो है, क्योंकि m हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो AM1 से AMN. तो इसको ना हम समझाने के लिए ऐसे लिखा है, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे. वी कैन राइट दिस एज A इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट AIJ. यहाँ ऑर्डर लिखने की परंपरा है, M क्रॉस N मीन्स हाउ टू रीड दिस. A इक्वल टू ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय AIJ हैविंग ऑर्डर M क्रॉस N मीन्स M रोज एंड N कॉलम. तो I, तो नंबर ऑफ रोज है ना, तो I वेरी करेगा 1 to M मीन्स फर्स्ट रो होगी, सेकेंड रो होगी mth रो तक, एंड J वेरी करेगा 1 to N. फर्स्ट कॉलम होगा, सेकेंड कॉलम होगा, nth कॉलम होगा. तो इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. राइट क्वेश्चन 1, राइट ए मैट्रिक्स A इक्वल टू
Aij of order 2 cross 2 such that Aij is I plus j. So this is very easy. तो सबसे पहले you write it in expanded form. 2 rows 2 columns. तो आपके पास 4 एलिमेंट आएंगे. तो सबसे पहले 2 1 1 1 2 फर्स्ट रो, सेकेंड रो में 8 2 2 8 2 सॉरी सेकेंड रो में 8 2 1 8 2 2. नाउ व्हाट इज Aij? I प्लस j. तो A11 क्या होगा 1 प्लस 1. A12 क्या होगा 1 प्लस 2, क्योंकि Aij में I और j को प्लस करके फॉर्मूला दिया है. ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा, हमें नहीं बनाना. Aij है इज डिफाइंड एज I प्लस j. तो A11 होगा 1 प्लस 1, A12 होगा 1 प्लस 2, ये 2 प्लस 1, ये 2 प्लस 2. तो ये इस फॉर्मूले को यूज़ करके 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4. Let us take another question. Write a matrix A equal to Aij of order 3 cross 3 such that Aij is maximum of Ij minus minimum of Ij. ये इस बार क्वेश्चन आया बोर्ड में MCQ में. तो 3/3 मैट्रिक्स होगी. तो 1 1 1 2 1 3 3 कॉलम्स होंगे ना. फिर सेकंड रो होगी 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. ये भी आप बाद में देखेंगे MCQ में, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको वर्बली प्रैक्टिस हो जाएगी. अब पहले देखिए Aij है क्या. पहले I और J का मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए, फिर I और J में से जो है मिनिमम ले लीजिए, दोनों को माइनस कीजिए. यहाँ I और J दोनों 1 1 है. A11 में I भी 1 है, J भी 1 है. तो इसका मैक्सिमम भी 1 होगा और मिनिमम भी 1 होगा. तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 1 माइनस 1 0. अब यहाँ पे Aij में I 1 है, J 2 है. तो मैक्सिमम इन दोनों नंबर का 2 है, मिनिमम 1 है. तो 2 माइनस 1 1. अब A13 में मैक्सिमम 3 है, मैक्सिमम ऑफ Ij. तो 1 3 में से मैक्सिमम जो है 3 है, मिनिमम ऑफ Ij मिनिमम वैल्यू 1 और 3 में से 1 है. तो मैक्सिमम 3 मिनिमम 1, फिर दोनों को माइनस करना है. तो 1 माइनस 3 3 माइनस 1 2. अब 2 1 में से मैक्सिमम 2 है, मैक्सिमम Ij. तो 2 और 1 में से मैक्सिमम 2, मिनिमम ऑफ Ij. तो 2 1 में से मिनिमम इज़ 1. तो 2 माइनस 1 इज़ 1. फिर 2 2 में मिनिमम भी 2 होगा, मैक्सिमम भी 2, तो माइनस करेंगे 0. अब 2 3 में से मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 2 है. तो 3 माइनस 2 इज़ 1. 3 1 में मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 1 है. तो 3 माइनस 1 2. 3 2 में मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 2 है. 3 माइनस 2 इज़ 1. और 3 3 में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों 3 हैं. तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी. क्वेश्चन 3. कंस्ट्रक्ट a 3 cross 3 matrix whose elements are given by Aij 1 if I is equal to j, 0 if I is not equal to j. तो पहले ये समझिए एलिमेंट क्या कहता है. I इक्वल टू j हो तो वहाँ वैल्यू 1 है
और जहाँ आई और जे इक्वल नहीं है मीन्स रो और कॉलम नंबर सेम नहीं है। आई होता है रो नंबर, जे होता है कॉलम नंबर। तो जहाँ रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है वहाँ वैल्यू 1 आएगी, और जहाँ अनइक्वल है आई और जे वहाँ वैल्यू 0 आएगी। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं समझाने के लिए। फर्स्ट विल राइट 3x3 मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो होगी A11, A12, A13, क्योंकि 3x3 है ना तो A13 तक जाएगा। फिर 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब फिर से देखिए आई इक्वल टू जे जहाँ जहाँ है वहाँ वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ 1 1 में आई और जे दोनों 1 1 है, इक्वल है, तो ये 1 हो जाएगा। A2 2 1 हो गया क्योंकि आई भी 2 है, जे भी 2 है, तो यहाँ आई इक्वल टू जे है इसमें। इस एलिमेंट में आई और जे दोनों 3 हैं। तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें आई और जे सेम है। अब इनमें आई और जे डिफरेंट है, 1 3 डिफरेंट है, 2 1 डिफरेंट है, 2 और 3 इक्वल नहीं है, 3 और 1 इक्वल नहीं है, 3 और 2 इक्वल नहीं है। तो इन वैल्यूज़ में आई और जे इक्वल है, बाकी सब में आई और जे अनइक्वल हैं। आई यहाँ पे 1 है, जे 2 है, आई यहाँ पे 1 है, जे 3 है। तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्योंकि एक बार रीचेक कर लीजिए, यहाँ पे आई और जे 1 हैं, इक्वल हैं, आई और जे 2 2 इक्वल हैं, 3 3 इक्वल है। तो ये सारे 1 हो गए, बाकी सब में आई और जे कोई भी रेंडमली पिक कर लीजिए, आई 3 है, जे 1 है, तो अनइक्वल है, तो ये एलिमेंट बाय डेफिनेशन 0 हो जाएंगे। एक और लेते हैं एग्जांपल। कंस्ट्रक्ट ए इक्वल टू ए आई जे 3x3 मैट्रिक्स if aij is given by 2, if I is less than equal to j, and 1 if I is greater than j। तो पहले डेफिनेशन को समझे। जहाँ पे रो नंबर कॉलम से लेस और इक्वल है वहाँ सब एलिमेंट की वैल्यू 2 है। जहाँ रो का इंडेक्स नंबर कॉलम से बड़ा है, आई रो के लिए होता है, जैसे यहाँ पे आई 3 है और जे 2 है, तो जब रो नंबर कॉलम नंबर से बड़ा है तो वो सारी वैल्यूज़ ए आई जे की 1 है। तो इसमें भी 3x3 मैट्रिक्स पहले पूरा लिख लीजिए। ये आप ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में पूरा लिख के दिखाएं, ये आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है, तो वहाँ इतना टाइम नहीं होता। तो अभी समझने के लिए तो बड़े आराम आराम से समझिए। आई लेस देन इक्वल टू जे, तो 1 1 1, आई लेस देन इक्वल टू जे का मतलब क्या है, आई अगर जे से लेस है या इक्वल है, तो यहाँ इक्वल है तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ध्यान में रखना ये 2 हो जाएगा। फिर 1 2 में आई जे से लेस है, ये भी 2 हो जाएगा। 1 3 में आई 1 है, जे 3 है, तो लेस देन जे है, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये तीनों 2 हो जाएंगे। फिर 2 1 में आई 2 है, जे 1 है, तो 2 1 से बड़ा है ना, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 2 में आई और जे इक्वल है, तो जब भी इक्वल है या लेस है आई जे से, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 3 में आई जे से लेस है, तो ये भी 2 हो जाएगी। 3 1 और 3 2 में आई जे से बड़ा है, तो ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएंगी। और ये 3 3 में आई और जे इक्वल है, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ लिख देते हैं, ए 1 1 में आई जे के इक्वल था, तो वैल्यू 2 है, 1 2 में भी 2 था, इन सब में आई जे से लेस था। आई जे से बड़ा इन 3 एलिमेंट्स में, यहाँ पे आई 2 है, जे 1 है, 3 1 3 2, तो इन तीनों में आई जे से बड़ा है, तो ये तीनों वैल्यू सिर्फ 1 आएगी जब आई जे से बड़ा है, बाकी सब में 1 है। तो ये हमने देखा था 1, ये 2, ये 2,
ये आई जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा है तो 1 है वैल्यू, और जब भी आई जे से इक्वल या लेस है तो वैल्यू 2 है। तो दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स फ्रॉम द गिवन फॉर्मूला। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। उसमें सबसे पहले हम एक एलिमेंट होता है स्पेशल जिसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, वो पढ़ते हैं। डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एन एलिमेंट aij of a matrix is known as diagonal element if row number is equal to column number. For example, a11, a122, etc. So if a is 2 1 3 4 5 6 7 1 3, तो यहाँ पे ये a11 है, ये a22 है, ये a33, तो इन एलिमेंट्स को हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स आर a11 is 2, a22 is 5, a33 is 3. These are diagonal elements. तो इसकी पहचान ये है, ये एलिमेंट्स, इसको हम डायगोनल नहीं कहते क्योंकि यहाँ पे 1 3 है, ये 1 3 और ये 3 1 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है, इट इज़ ए मैट्रिक्स having one row only. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, इसमें एक रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। इसमें 1 रो है और वर्टिकल लाइंस 2 है, 2 कॉलम। इसमें 1 रो है, 3 कॉलम। तो रो एक ही है, कॉलम कितने भी हों। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 2, 2 कॉलम्स। इसका है 1 क्रॉस 3। सो आई कैन से इट इज a matrix A equal to aij of order 1 cross something। रो 1 है, यहाँ 1 लिखा ना, तो मीन्स रो इज 1 और n कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। सिमिलरली वी डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स, it is a matrix having one column only. For example, 1 2 3 1 2, these are two examples। इसमें रो कितने भी हैं, 3 है, इसमें 2 रो हैं, लेकिन वर्टिकल लाइन एक है, कॉलम एक है, इसमें भी कॉलम एक है। आर कॉलम मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्लुरल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, पहले में रोज कितनी है, 3, कॉलम एक है, 3 क्रॉस 1, और सेकंड में 2 रोज है, 2 हॉरिजेंटल लाइन्स है ना, इसमें 2 हॉरिजेंटल लाइन्स हैं, वर्टिकल लाइन एक ही है, तो इसका ऑर्डर लिखा जाएगा 2 क्रॉस 1। सो इट इज़ अ मैट्रिक्स
ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस वन। रोज कितनी भी हो सकती है, कॉलम एक ही होगा। एम क्रॉस वन मीन्स वन कॉलम। तो कई बार ये एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मान लीजिए ये एक ये आ गया, एक ये दे दिया, तो इनमें से आपको रो मैट्रिक्स पहचानने को बोले, तो रो मैट्रिक्स मीन्स ओनली वन रो, तो ये रो नंबर होता है। कॉलम मैट्रिक्स पहचाननी है तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। इसके बाद आते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स, it is a matrix having equal number of rows and columns, equal number of rows and columns। तो जिस मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स की संख्या बराबर हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 0 2 3, 2 1 0 3 2 1 1 4 5। तो A is having 2 rows 2 कॉलम्स, तो रोज भी 2 है, कॉलम्स भी 3। इसमें रोज 3 है, 3 ओरिजेंटल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन, कॉलम भी 3 है। तो A is a square matrix of order 2 cross 2। B is a square matrix of order 3 cross 3। Sometimes instead of calling square matrix of order 2 cross 2, we simply say of order 2। A is a square matrix of order 2। A is a square matrix of order 2। तो जब मैं कह रहा हूँ ना A is a square matrix of order 2, तो स्क्वायर वर्ड से अपने आप पता लग रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो B को हम कह देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ जब हम कह रहे हैं B is a square matrix of order 3 मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम। In general, A equal to Aij M cross N is a square matrix if M equal to n number of rows equal to number of column। तो यहाँ पे M क्रॉस M हो जाएगा या N क्रॉस N, तो हम कह देंगे A is a square matrix ऑफ ऑर्डर M कह लो या ऑर्डर N, क्योंकि M और N बराबर है। N क्रॉस N भी कह सकते हैं, बट इट इज़ बेटर यू कॉल ऑर्डर N। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स पहले एग्जांपल से समझाते हैं। 2 0 0 0 3 0 0 0, यहाँ 0 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, और 2 0 0 5। इसमें जो भी ये मैंने बताया था ना डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1 1 2 2 3 3, A11 A22। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। ये भी ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन इनके बारे में कुछ भी नहीं है। ज़ीरो नॉन ज़ीरो कुछ भी हो सकते हैं। कंडीशन क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, 1 3 आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो जहाँ भी आई नॉट इक्वल टू जे है वो एलिमेंट जीरो होंगे। तो और दूसरी कंडीशन क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। 3 by 3 की है, 3 रोज 3 कॉलम, ये 2 रोज 2 कॉलम। तो ए स्क्वायर
diagonal matrix, it is a square matrix. So first of all, it is a square matrix such that its elements are aij, square matrix of order n कह सकते हैं, of order n means n cross n, such that aij 0. कब 0? 1 2 i1 j2 not equal a1 3 a2 1, ये 2 1 होता है ना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आई और जे नॉट इक्वल जहाँ जाए वो 0 है. डायगनल एलिमेंट्स में आई और जे इक्वल हैं तो ये कुछ भी हो सकते हैं. तो नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0. ए आई जे इज 0 इफ आई इज इक्वल टू, आई इज नॉट इक्वल टू जे फॉर आई और जे 1 to n. मतलब जितने भी आई जे इक्वल टू 1 to n का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे 3x3 मैट्रिक्स है तो यहाँ आई और जे 1 से 3, मतलब A1 2 A1 3 है ना. तो सिंपल याद रखना है कि ए आई जे 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे. और आई और जे कहाँ से कहाँ वेरी करेंगे, आई के रो नंबर, जे के कॉलम नंबर. तो रो नंबर भी 1 से n तक जाएगा क्योंकि ऑर्डर n क्रॉस n है, और कॉलम नंबर भी 1 से n तक जाएगा. इसी से मिलता जुलता है स्केलर मैट्रिक्स. इसमें डायगनल ना 2 3 4 हैं, 2 3 4 हैं. अगर सारे डायगनल एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएं और बाकी 0 हो जाएं तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है. तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 3. तो ये एग्जाम्पल हो गए. तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है. इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और n क्रॉस n भी लिख सकते हैं. ऑर्डर n में का मीनिंग है n रोज एंड n कॉलम, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है. सच दैट, अब यहाँ दो कंडीशन है, ए आई जे आपस में डायगनल एलिमेंट्स तो आपस में इक्वल हो. मतलब डायगनल एलिमेंट कौन से, जब आई और जे इक्वल है, A11 A22 A33 सारे इक्वल हों. तो इसकी पहचान क्या होती है, ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है. तो आई इक्वल टू जे जब भी होगा तो एलिमेंट डायगनल एलिमेंट होगा. 1 1 2 2 3 3, यहाँ आई 1 1 है, जे 2 2 है, और के आई यहाँ पे A11, आई और जे दोनों 1 1 है. A22, आई और जे दोनों 2 2 हैं. A2 3 3 3 3 है. तो इन तीनों एलिमेंट में आई इक्वल टू जे है, यहाँ 1 1, इसमें 2 2, इसमें 3 3, बाकी 0 होंगे. तो सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे. ये तो वही वाली कंडीशन है. और जब इक्वल हैं तो क्या होना चाहिए, तो ये एक ही नंबर के इक्वल होने चाहिए. तो उस नंबर को आप लैम्डा कह दो, वेयर लैम्डा इज एनी रियल नंबर. अच्छा, नोट कीजिए, एक ये रह गया था पहले. अगर मैं लिखूँ ना डी आई ए जे डायगनल, डी आई ए जे डायगनल 2 3, तो इसकी फुल मैट्रिक्स बनेगी, एक डायगनल में 2 3 आ जाएंगे और बाकी 0. तो ये शॉर्ट फॉर्म है डायगनल मैट्रिक्स को लिखने का. तो 2 1 3 मीन्स 3/3 की होगी. 2 0 0 0 1 0 0 0 3. 2 1 3 मीन्स 3 रोज, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और डायगनल एलिमेंट्स होंगे 2 1 3. स्केलर में ये तीनों सेम हो जाएंगे, 2 2 2 जो भी दिया होगा. इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है. A इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n is said to be identity if
आइडेंटिटी में ना ये एलिमेंट आपके जो इक्वल थे ना, इसमें ये किसी के भी इक्वल हो सकते हैं, 2 के 3 के, लेकिन आइडेंटिटी में बाकी सब सेम रहेगा, ये सारे ज़ीरो रहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो जाएंगे, तो ए आई जे 1 होगा इफ़ आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे का मतलब डायगोनल एलिमेंट, एंड 0 इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। दैट इज़ फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये ऑर्डर 3 की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक I2 मीन्स ऑर्डर 2 का, मीन्स 2 क्रॉस 2, I3 मीन्स 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब देखिए हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर भी कह सकते हैं, क्योंकि स्केलर में कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ भी तो इक्वल है, 1 के इक्वल है, लेकिन है तो इक्वल। तो हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स भी होगी, और हर स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल भी होगी, क्योंकि डायगोनल में क्या है, ये एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, जो कि स्केलर में भी है। स्केलर में एक्स्ट्रा कंडीशन ही है ना, तो हर स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल है, और ये सारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, every identity matrix is diagonal as well as scalar. Reverse is not true. Every scalar matrix is diagonal. क्योंकि स्केलर में क्या था, ये 2 0 0 2, तो ये डायगोनल भी हो गई ना, क्योंकि डायगोनल नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जिसमें ये एलिमेंट 0। लेकिन हर डायगोनल स्केलर नहीं होगी, क्योंकि डायगोनल अगर है तो वो ये भी हो सकती है 2 0 0 3, ये डायगोनल तो है बट इट इज़ नॉट स्केलर। तो रिवर्स इज़ नॉट ट्रू, और ये सारी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। फिर नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स नेम से ही क्लियर है। इट इज़ ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो एंड रिप्रेजेंटेड बाय, अब इसको ओ कहो या ज़ीरो को, रिप्रेजेंटेड बाय ओ। तो दिस 0 0 0 0 है, ये ज़रूरी नहीं है स्क्वायर हो, ये सभी नल मैट्रिसेस हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में और बहुत सारी टाइप बताई जा सकती हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, और भी बहुत सारी टाइप्स होती थी पहले, लेकिन जो सिलेबस के हिसाब से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बनती हैं वो हमने किया। इसके बाद हम आगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, ऐड कैसे करते हैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज। So I hope that you will be able to understand this topic very easily. Thank you.